everyone, welcome back on England Zone. With you all, this is Priyanka Singh and आज की वीडियो के बारे में हम बात कर लेते हैं. Today we are going to talk about Othello, an important play by William Shakespeare, and in this video we will cover important characters, brief summary of this play Othello, and Othello is regarded as one of the फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर, जिसमें हम बात करते हैं मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो की. प्लीज शेयर एंड लाइक दिस वीडियो. आप जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे आज इस सेशन में जुड़ सकें. एंड स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्ले, दैट वाज ओथेलो. Othello, the tragedy of Othello, or The Moor of Venice, is the full title of this play that was written by William Shakespeare, Othello, but commonly we know this play by the name of Othello. Who was the protagonist of this play? जो इस play का protagonist होता है, his name was also Othello, और उसी के name के behalf पे ये play जो है टाइटल्ड है, और इसका फुल टाइटल जो मैंने आपको अभी बताया, दैट वाज द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मोर ऑफ वेनिस, इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर. वी ऑल नो that this is one of the great four tragedies we have in English literature that was written by William Shakespeare. Next important introduction and fact we have about Othello play. Othello is a tragedy. This is written in 5 acts by William Shakespeare, and it was first performed in the year 1603 to 1604. So आप ये समझ सकते हो कि ये लिखा या परफॉर्म्ड हुआ था जब ये प्ले, उसका टाइम ड्यूरेशन था 1603 से लेकर के 1604 के मिड में ये प्ले परफॉर्म्ड हुआ है इंग्लैंड में. एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1622 इन क्वार्टो एडिशन ऑफ एन मैन्युस्क्रिप्ट, और टेक्स्ट की फॉर्म में ये प्ले कब पब्लिश हुआ है, दैट वाज पब्लिश्ड इन द year 1623 and it was included in the first folio edition of 1623. सो मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में 1622 में ये फर्स्ट इसका एडिशन जो पब्लिश हुआ था इन क्वार्टो एडिशन, एंड टेक्स्ट फॉर्म में या बुक फॉर्म में जब ये पब्लिश हुआ है, दैट वाज इन फर्स्ट फोलियो इन द ईयर 1623. बात करते हैं फ्रॉम वेयर the source of this play Othello was taken or adapted by the William Shakespeare. And here we have the Othello was an adaptation of the Italian writer Cinthio. Cinthio's की टेल का ये adaptation work है Capitano Moro, जिसका means होता है because Cinthio was the Italian writer and poet and he had written his title in Italian language, और जिसका title था Un Capitano Moro, and the English meaning of that title was a Moorish captain. That's why William Shakespeare ने अपने इस work में Othello play में जो सब टाइटल या फुल टाइटल जो इसका था इस play का, that was a Moor of Venice, and from his work that was from his Glee Hecatomachy जो कि 1565 में लिखा गया था. सो ओवरऑल एडेप्टेशन की बात करते हैं ओथेलो प्ले की, एंड दैट वाज एडेप्टेड बाय द Italian writer's tale, Cinthio's tale, that was on Capitano Moro, जिसका मतलब होता है a Moorish captain. So overall हमको ये पता चल गया कि we had discussed about the source of this play and some important brief introduction of the Othello play. अब चलिए बात कर लेते हैं important characters who were involved in this play. इसके बाद मैं आपको brief summary discuss करूंगी आपसे इस play की. And the characters we have in this play: Othello, the general in the Venetian military. Next important character we had Desdemona. Desdemona जो थी Othello की वाइफ थी, and daughter of Brabantio. Brabantio का भी इंट्रोडक्शन मैं आपको. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वी हैव Iago. सो यहाँ पे जो 3 मेन कैरेक्टर, लीडिंग कैरेक्टर, जो फर्स्ट 3 इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया अभी, दे वर रिगार्डेड एज द फर्स्ट 3 मेन कैरेक्टर, लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले, जिनके आसपास ये स्टोरी, इस प्ले की स्टोरी रिवॉल्व करती है या जिन पे बेस्ड ऑन है यहाँ की ओथेलो की स्टोरी. Iago, Othello's trusted but jealous and traitorous ensign. Even Othello believes on him, Iago, but he was a jealous man and who takes revenge, who is jealous of the position of the Othello. Next important character we have Cassio, Othello's loyal and most beloved captain. Next we have Emilia, Iago's wife and Desdemona's maidservant. Next we have Bianca, Cassio's lover. Another important character जिनकी मैं बात कर रही थी, Brabantio जो थे
वेनेशियन सेनेटर थे एंड डेस्टिमोना के ही फादर थे, जैसा भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। एंड नेक्स्ट वी हैव रोजरेको, डिसोल्यूट वेनेशियन इन लव विद डेस्टिमोना। सो ये कैरेक्टराइजेशन है इस प्ले का। सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ही यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जिनके विषय में मैं अभी आपसे इसकी स्टोरी में ब्रीफ समरी में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। एंड लेट्स टॉक अबाउट द ब्रीफ समरी ऑफ दिस play Othello. Iago is furious about being overlooked for promotion and plots to take revenge against his general Othello. This is the story start with the promotion, जहाँ पे Othello जो होते हैं, इनका जनरल जो होता है Iago का, he promoted Cassio in place of Iago, क्योंकि Iago को पता होता है कि I would be promoted, but on his place Cassio was promoted by Othello, और because of this when he was overlooked for promotion, then he plots to take revenge of that against जनरल ओथेलो। और वहां पे फिर वो द मोर ऑफ वेनिस के अगेंस्ट एक प्लॉटिंग करता है टू टेक रिवेंज, क्योंकि उसको प्रमोशन नहीं मिला था, उसकी जगह पे कैसियो को प्रमोशन मिल गया था। इवन ही वाज द ट्रस्टवर्दी ऑफ ओथेलो, बट वो अपने ईगो मैनिपुलेट्स ओथेलो into believing his wife Desdemona is unfaithful। ये स्टोरी है जो ब्रीफली मैं आपको वहां पे डिस्कस कर रही हूँ। ईगो जो है वो मैनिपुलेट करता है बिकॉज ओथेलो वाज black African guy and Desdemona was very beautiful lady. Iago manipulates Othello into believing his wife कि उसकी wife Desdemona is cheating her and she is in love with Cassio, and Cassio in his absence he meets डेस्डेमोना। एंड इस तरीके की मैनिपुलेटिंग बातें करके वो ओथेलो को मैनिपुलेट करता है अगेंस्ट हिज वाइफ डेस्डेमोना, और दिस ऑल स्टीयर्स द जेलेसी एंड दिस स्टीयर्स द एंगर ऑफ ओथेलो। और इस वजह से वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ हिज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज जेलेसी ओथेलो किल्स Desdemona, murder Desdemona, and after that he kills himself। तो इस तरीके की ब्रीफ स्टोरी मैंने यहाँ पे डिस्कस की, और इसकी मैं डिटेल एक समरी पूरी बनाऊंगी जिसको कि एक्ट वाइज समरी होगी आपका, वो आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगे। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थीम्स इन्वॉल्व इन दिस बाय विलियम शेक्सपियर वी हैव इन दिस प्ले ओथेलो, एंड जिसकी बात कर लेते हैं। मेजर थीम्स जो ओथेलो में है, दे आर लव बिटवीन टू हस्बैंड एंड वाइफ, jealousy also because Iago is very much jealous of the promotion of the Cassio and his general Othello। racial prejudice भी यहाँ पे है because racial prejudice इसलिए कि Othello was the black African guy and his wife was Desdemona was very beautiful and English lady। appearance versus reality, जो कुछ देखने में है और जो कुछ रियल है, ये सब कुछ this is the theme involved in this play। expectations versus outcome, what Desdemona expect from her husband, what was the outcome of her expectation, that all are the important themes involved in this play Othello। so आपको themes भी इस पे समझ में आ गई होंगे कि love, jealousy, racial prejudice, appearance, reality, expectations and outcome, these all are the important themes that are discussed by the विलियम शेक्सपियर इन दिस प्ले ओथेलो। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसके कोटेशंस की। व्हाट आर द कोटेशंस, इंपॉर्टेंट कोटेशन, और मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कोटेशंस यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है इस वीडियो में। इवन इट हैज अ लॉट ऑफ कोटेशन इन दिस प्ले ओथेलो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन जिसकी मैं बात करूंगी यहाँ पे, दैट इज ओ बिहेवियर माय लॉर्ड ऑफ जेलेसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। ये ईगो की स्पीच है टू ओथेलो। ओथेलो से ये चीजें कहता है। एक्ट 3 और सीन 3 में ये स्पीच बोली है ईगो ने। इवन ये जो स्पीच है, ईगो इज मैनिपुलेटिंग ओथेलो अगेंस्ट हिज वाइफ डेस्डेमोना, बट फिर भी वो ये चीजें कहता है कि यस बी अवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलेसी, इट इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है इस प्ले हैमलेट का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन की बात कर लेते हैं, दैट वाज रेपुटेशन, ओ आई हैव लॉस्ट माय रेपुटेशन, आई हैव लॉस्ट द इमॉर्टल पार्ट ऑफ माय सेल्फ एंड व्हाट रिमेन्स इज bestial। This is the important quotation of this play Hamlet, and Cassio की स्पीच है एक्ट 2 और 3 सीन 3 की ये स्पीच है, कैसियो ने इसको बोला है। सो इस तरीके से जो एक थीम आप इन कोटेशंस के थ्रू भी समझ सकते हो कि किस तरीके के थीम का यूज करा गया है इस प्ले में ओथेलो में। जैसे जेलेसी की बात हुई है, रेपुटेशन की बात हुई है, लव की बात हुई है, एंड ऑल्सो
appearance and reality की बात जो मैंने अभी डिस्कस किया. So all these are important themes involved in this play. And friends, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, because हमने इसी important वीडियो में या छोटे से एक वीडियो में briefly डिस्कस किया what important characters of this play, source of this play, and brief summary of this play, and also important quotations and themes that all are discussed by William Shakespeare in Othello, that I had tried to clarify all the things in this important video on Othello. So वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए. आगे आने वाले डेज में मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊंगी related to the plays of the William Shakespeare. So stay connected with this channel if you want to study deeply and very easily about the plays of the William Shakespeare. Let's see you in the next video. Till then, keep connecting and keep enjoying learning. Thank you very much for watching this.